डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया था ना? नो सर नहीं हुआ था सर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गई थी? नो सर नहीं हुआ? No, sir. नहीं हुआ था Sir, after the sufficient condition, we have taught derivative of composite. अच्छा, अप्रोक्सीमेशन बाय टोटल डिफरेंशियल मैंने किया था, है ना? एरर वगैरह फाइंड करने का? नहीं सर। No, sir, all that has not happened. No, sir. अरे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हो रही थी, वन वेरिएबल वाला हमने किया था, है ना? चलो ठीक। चलो ठीक, कोई बात नहीं, शुरू से फिर करते हैं, क्या हुआ तो पता है। Now let me come approximation by total differential. So let z is any function of x and y. For example, suppose we want to calculate area, where area is a function of length and width. And during computation of this z, suppose we make a small error in x and y. Suppose during the computation of measurement of this x and y, we make some error, and the value of z depends on this x and y, then we can find a corresponding error in z also. Now, how to calculate that error, approximate error, using the total differential, here we will study. And suppose during the computation we are making some error in x, that is x plus delta x, and in y, that is y plus delta y. Then if we subtract this fxy, then this is nothing but delta z, total increment. This is called the exact error. The corresponding error in z we can compute by this fx plus delta x, y plus delta y minus fxy. But as we know by the definition of total differential, this delta z can be expressed as fx delta x. It can be approximate as fx delta x plus fy delta y. If this delta x and delta y are very small, बहुत छोटी क्वांटिटी अगर है, तो जो एरर टर्म है डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा y into एप्सिलॉन 2, then delta x into epsilon 1 and delta y into epsilon 2, that is negligible. ना मिला clear. So this fx delta x fy delta y, this is in fact total differential, clear. So this exact error can be approximate to this total differential fx delta x plus fy delta y. तो ये है approximate error. जिस पॉइंट पे हमको उसका approximate error फाइंड करनी होगी, we just see what is the error during computation of x and y. बस पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लो उस पॉइंट पे और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मल्टीप्लाई कर दो, देन ऐड, you will get the approximate error. And this concept we can generalize for function of n variables also. And we define the absolute error. The absolute error is defined as fx1 fx delta x plus fy delta y. If it is function of n variables, then fx1 delta x1 fx2
delta x2 up to fxn delta xn. If it is n variables, then we can define the absolute error by this. And the maximum absolute error, this maximum absolute error, you can say this absolute error, if we take the positive value of the error, only if we take the positive value of this error, then the maximum absolute error we can calculate mod fx1 delta x1 mod fx2 delta x2 up to mod fxn delta xn in general. But if it is function of x and y only, for function of two variable, we can calculate by fx delta x plus fy into delta y. Then we can see that if this delta x is the maximum of all such delta xi, then this maximum absolute error will be definitely, this will be definitely less than or equal to delta x fx1 fx2 up to fxn. In general, to find the maximum absolute, we use this formula: mod of fx delta x plus mod of fy delta y. Okay, and there is a maximum relative error also. The maximum relative error, if we divide the maximum absolute error by mod f, then what we get, that is the maximum relative error. That means maximum absolute error divided by mod of f. This is maximum relative error, and there is a percentage error. Percentage error is nothing but maximum relative error into 100. Maximum relative error into 100. Then we get the percentage error. Let me take one example, it will be clear. Find the total increment and total differential of the function z equal to x plus y plus xy at the point 1, 2 for error in delta x as 0.1 and error in delta y as minus 0.2. So find maximum absolute error and maximum relative error. Let me solve it. So here fxy is equal to x plus y plus xy. Okay. So to find the total increment, we have to find out fx plus delta x minus fxy. Okay. So fx plus delta x, y plus delta y minus fxy. This is given by, you can see that
If you put x plus delta x, y plus delta y, and x plus delta x, y plus delta y minus fxy, then all x, y, and xy term will be cancelled. Only the term delta x plus delta y plus x into delta y plus y into delta x and one more term, that is delta x into delta y, will remains. तो आपका जो डेल्टा जेड होगा आपका ये हो जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल इंक्रीमेंट. ठीक है. So total increment is given by this. Now put the value here. What is delta x here? Delta x is equal to 0.1, delta y is equal to minus 0.2, and x is equal to 1 and y is equal to 2. So at this point, if you put the value of this delta x, delta y, x and y, then what we get? 0.1 plus minus 0.2 plus 1 into minus 0.2 plus y, 2 into 0.1 plus delta x delta y, that means 0.1 into minus 0.2. And if you solve, then you will get its value is equal to minus 0.12. This is total increment. Or sometimes we can say it is exact error during the computation of fxy. This is the exact error. Now to find the maximum absolute error or maximum relative error, then how we can find? So for that, first we compute partial derivative. Now del f by del x is equal to 1 plus y. So fx at 1, 2. At 1, 2 at the given point is 3. Okay. And in fact, the value of f at 1, 2, the value of f at 1, 2 is equal to 1, 2, 3 through to 5. Del f by del y is equal to 1 plus x. So del f by del y at 1, 2 is equal to 2. Clearly? So thus, total differential fx 1, 2 delta x plus fy at 1, 2 delta y, and put the value fx 1, 2 3 delta x 0.1, fy 1, 2 2 delta y minus 0.2. Just put the value minus 0. Yes, 0.2. If you put the value, then you will find its value is equal to minus 0.1. Now you see that if we compare with the total increment minus 0.12 and the total difference of minus 0.1, both are approximately equal. So this actually, this total differential, it is the approximate error. ठीक है. और ये आपका क्या था? दिस इज द एग्जैक्ट एरर. ठीक है. Okay. Now our problem is to find the maximum absolute error. So maximum absolute error. This is given by mod of fx at 1, 2 mod of delta x plus mod of fy at 1, 2 mod of delta y. So mod of fx is 3. This is 0.1 plus it is 2. It is 0.2. So finally its value is 0.7. So 0.7 is the maximum absolute error, and the maximum relative error is this is maximum absolute error divided by mod of f, mod of df, mod of f. So 0.7 mod of f is 5. 0.14. ठीक है.
0.14. So this is the maximum relative error. And percentage error, this is given by 0.14, that is maximum relative error into 100. So this is 14%. So this is the percentage error. So in this way, using the total differential, we can find the approximate error. ठीक है, main approximate error से होती है approximate error. What will be the approximate error during the computation? Using the total differential, we can find the approximate error during, if there is a error during the computation of z equal to fxy. Sir. Yes. सर अगर टोटल इंक्रीमेंट से ही हमें सर एग्जैक्ट एरर पता चल रहा है तो सर ये टोटल डिफरेंशियल से अप्रॉक्सीमेट एरर जो मिलता है सर, इसका क्या सर एप्लीकेशन है फिर? नहीं, होती क्या है ना, जैसे हमें नहीं पता हमने कितना, हम एफ एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई से कंप्यूट करने की जगह में हम जस्ट टोटल डिफरेंशियल अगर हम फाइंड कर दें तो टोटल डिफरेंशियल से हमको जो है उसका अप्रोक्सीमेट एरर पता चल जाती है कि अप्रोक्सीमेट एरर इतना हो सकता है। तो वहां पर हमको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई एट द गिवन पॉइंट और उसी में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा वो एग्जैक्ट एरर के लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो हमको ये कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको एरर फाइंड करना है ना तो हम एग्जैक्ट एरर फाइंड ना करके हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड कर लेते हैं, जस्ट टोटल डिफरेंशियल कंप्यूट करके। ये वैल्यू कंप्यूट करके और ये वैल्यू इसकी कंपैरिजन में ये वैल्यू कंप्यूट करना ज्यादा, ये तो इजी सिंपल फंक्शन था इसलिए ये इजीली कंप्यूट हो गया। अगर यही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फंक्शन होता तो कंप्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। ओके सर, थैंक यू। तो ये जस्ट रिलेशन है, वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ द टोटल डिफरेंशियल। What is the application of total differential? Actually, this total differential give the approximate error during the computation. तो टोटल डिफरेंशियल से हमको अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड कर सकते हैं। ये है एक तरह का एप्लीकेशन है, मान के चलिए टोटल डिफरेंशियल का। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मेरे ख्याल से डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन दोनों हो गया था क्या? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, क्यों भाई क्लास में थोड़ा याद नहीं आ रहा है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का हुआ था dz upon dt equals to del f upon del x into dx upon dt plus del f upon del y into dy upon अच्छा, dt। बस इतना ही हुआ था, डेल एफ बाय डेल यू वाला नहीं हुआ था? नहीं 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 सर। ओके, रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो if you recall, if z is function of x and y, where x is function of t and y is function of also t, in this case if you put the value of x and y here, then what we get, it is function of t only. Now how to compute dz by dt? As I discussed earlier, dz by dt we can compute del f by del x, dx by dt plus del f by del y and dy by dt। इसको चेन रूल भी बोल देते हैं, चेन रूल फॉर कंपोजिट फंक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, if z is function of x and y and x is function of ub and y is also function of ub, then ultimately z will be function of ub if you put the value of x and y here. Then z is function of two variable u and v. Now we can compute the partial derivative of z with respect to u and v. As we did here, the same concept we can generalize here also. How? We just find delta z. हम क्या करते हैं? We just find delta z. Delta z is equal to del f by del x delta x plus del f by del y delta y plus delta x epsilon 1 plus delta y epsilon 2. If we assume that the function is differentiable, then we can write delta z like this. हम ये मान के चल रहे हैं कि z क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है,
Now if we divide it by delta u, and then letting delta u tends to 0. Now if we take delta u tends to 0, then this becomes del z by del u, and this becomes del f by del x by del u, del f by del y by del u, and then this is tending to 0, this is tending to 0 if delta u tends to 0. So that's why ultimately this delta z by del u becomes del f by del x by del u, del f by del y by del x. Similarly, del z by del v you can write del f by del x by del v plus del f by del y by del v. ठीक है? So this is, you can say, how to find the partial derivative of composite function. जैसे मैं सिंगल वेरिएबल के लिए कहा था, the same concept we can generalize here for double variable. एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए. If f(x,y) is given by x cos y plus e power x sin y, where x is equal to t square plus 1 and y is equal to tq plus t. Find df by dt at t equal to 0. ये क्वेश्चन है. ठीक है? तो पहले हम df by dt is equal to del f by del x dx by dt del f by del y dy by dt ये होती है. Now put the value of del f by del x and del dx by dt. Del f by del x means cos y plus e power x sin y. dx by dt 2t plus 0 है, 2t रहेगी, plus del f by del y minus x sin y plus e power x cos y dy by dt 3t square plus 1. Now at t equal to 0, what is the value of x? If we put here t equal to 0, then we get 1 and y 0. And so df by dt at t equal to 0 is given by, this becomes 0 and this becomes 0, so this becomes 0, so we get only e. E मिल जाएगा, है ना? So df by dt at t equal to 0 is equal to e. Clear? Yes. सर ये df by dt पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t है ना? नहीं, पार्शियल नहीं, टोटल डिफरेंशियल है. टोटल डिफरेंशिएशन. क्योंकि जब x और y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो अल्टीमेटली f जो है फंक्शन ऑफ t हो जाएगा ना. ये यस सर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है ये, है ना? यस सर. इसलिए df by dt हम लिखेंगे. ओके सर. देखो एग्जांपल, z equal to fxy where x equal to e power 2u plus e power minus 2b and y is equal to e power minus 2u plus e power 2b. So that del f by del u minus del f by del v is equal to 2 times x del f by del x minus y del f by del y. ये हमको शो करना है. ठीक है? Again using the chain rule,
del f by del u is equal to del f by del x by del u, del f by del y by del u. तो del f by del x तो del f by del x ही रहेगी. Del x by del u from here 2e power 2u. Del f by del y by del u minus 2e power minus 2u. And del f by del v, del f by del x by del v, del f by del y by del v. Del f by del x by del v is minus 2e power minus 2v. Del f by del y by del v is 2e power 2. Now you can see that del f by del u minus del f by del v, if you subtract these two, the corresponding left and right part, then del f by del x is common, 2e times 2u plus 2e power minus 2v. 2 बाहर निकाल दो, e power 2u plus e power minus 2v. ठीक है, plus del f by del y, here also 2 you can take outside, this minus 2 e power minus 2u minus 2 तो बाहर निकाल दिया, e power 2v. So what is this? This is 2 del f by del x, and this is x minus 2 del f by del y. Or you can say that it is 2 times x del f by del x minus y del f by del y. So we complete the proof. ठीक है, तो ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन चेन रूल. अब आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होती है. तो जरा स्क्रीन 1 मिनट ऊपर कर दीजिएगा थोड़ी देर के. यस सर, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया. डायरेक्शनल डेरिवेटिव. चलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होती है देखते हैं. ये जो हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए थे, del f by del x and del f by del y, actually this partial derivative are the directional derivative in the direction of x and y axis. ठीक है, partial derivative are the directional derivative in the direction of x and y axis. एक्चुअल में जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, if we define the derivative, तो डेरिवेटिव हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. सपोज f dash x we want to find out, then this is nothing but limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h. ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए हम इस तरह से डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं. डिफाइन द डेरिवेटिव इन दिस वे. ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात करते हैं. चलिए, सो लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड दिस f इज डिफाइंड इन अ डोमेन D सबसेट ऑफ R2 to R, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. देन द रेट ऑफ change of f at a point AB in the direction of vector, unit vector u मान लेते हैं UV, where this mod of the unit vector is equal to 1. ठीक है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन. दिस इज गिवन बाय, जैसे आपका ये डोमेन है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. सपोज दिस इज द डोमेन एंड दिस इज अ पॉइंट ए बी. नाउ एट दिस पॉइंट ए बी, एंड सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यू.
where mod of u is equal to 1 यूनिट वेक्टर है ये आपका x डायरेक्शन, ये आपका y डायरेक्शन, ये गिवन डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ f क्या होती है? तो इस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ f होती है दैट इज del f by del x and the rate of change of f in y direction is del f by del y, but in general how to find the rate of change of f in a given direction? तो उसी को हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं and that directional derivative is given by del directional derivative in the direction of the vector u of f at the point AB. This is given by limit h tends to 0 f a plus h u b plus h b minus f a b divided by h. ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। देखिए अगर इसके साथ कंपैरिजन करो तो क्या होगा ये? इफ यू कंपेयर विद दिस then limit h tends to 0. Suppose this x is a vector xy and this h is h1 और h2 या फिर h मान लेते थोड़ी देर के लिए, h मान लो थोड़ी देर के, बहुत कंपोनेंट में h इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो f x प्लस h क्या हो जाएगी? f x प्लस h y प्लस h माइनस fx मीन्स fxy डिवाइडेड बाय मॉड h। तो मॉड h क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दैट मीन्स h अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब हम करते हैं इसमें तो जो आएगी दैट इज द डेरिवेटिव। यहाँ पर मॉड h लिख देते हैं, इंक्रीमेंट मॉड h। अगर यही इंक्रीमेंट एक्चुअली इन जनरल फिर h1 h2 कर देते हैं हम इसको, अगर हम उसको फिक्स नहीं करना चाहते तो h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इन जनरल। ठीक है, ये h टेंड्स टू 0 मींस h1 h2 टेंड्स टू 0। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो उसी लिमिट को हम बोलते हैं उसकी डेरिवेटिव। अगर यही मैं h2 को 0 कर देता हूं, if I take h2 0 that means there is no increment in y, only increment in x। तो क्या हो जाए fx plus hy माइनस fxy बाई अभी h2 0 हो गया, अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर क्या हो जाएगी? h1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज del f by del x। एंड सिमिलरली अगर मैं h1 को 0 करके h2 को रखता हूं डिवाइडेड बाय h2 एंड h2 टेंड्स टू 0 तो ये del f by del y हो जाएगी। ठीक है, तो द सेम कॉन्सेप्ट हियर वी जनरलाइज टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h u b plus h b minus f a b by h। h increment in the direction of u, h increments in the direction of v। Okay, now just to see that in particular if this unit vector u is equal to 1 0, 1 0 means x axis, 1 0 क्या होगा? x एक्चुअली जो हम u भी लिख रहा हूं ना, u भी यूनिट वेक्टर u भी, दिस इज नथिंग बट u I प्लस v j i। अगर मैं v को 0 कर देता हूं, u को 1 कर देता हूं तो क्या हो जाए? I मींस x डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, सो इफ u इज इक्वल टू 1 0, 1 0 मींस अगर मैंने u को 1 माना और v को 0 माना तो क्या मिलेगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h b माइनस f a b डिवाइडेड बाय h और ये क्या है? del f by del x। Similarly, if this unit vector u is equal to 0 1, 0 1 means y axis क्योंकि j मिलेगा तो y axis में रेट ऑफ चेंज ऑफ f कितना है? To find out that we can see that it is then becomes limit h tends to 0 f a b plus h minus f a b divided by h।
ये क्या है del f by del y. So this del f by del x and del f by del y are nothing but the directional derivative in the direction of x and y axis. Now the question is how to find this directional derivative. Is there any formula for to find the directional derivative at any point if the function is differentiable? Yes, there is a formula. If f is differentiable, at AB, then how to find the directional derivative at this point? इसके लिए मैं क्या करूंगा, let me define gz is equal to fa plus uz b plus vz. इसको मैंने gz एक डिफाइन किया, जो z है उसको कुल मिला के h को मैंने z ले लिया और कुछ नहीं, h को एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे ट्रीट किया, h को मैंने z ले लिया. ठीक, यहाँ पर a b and u v आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है क्योंकि पॉइंट फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, दोनों फिक्स है, तो ये सब फिक्स है. ओनली जेड चेंज हो रही है, या फिर एच इंक्रीमेंट जो कर रहा हूं वो इंक्रीमेंट चेंज हो रही है, उसी इंक्रीमेंट को मैं एक वेरिएबल की तरह ले लिया यहाँ पे. देन व्हाट इज जी डैश जेड? दिस इज बाय डेफिनेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी जेड माइनस जी जीरो डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, जी एच माइनस जी जीरो डिवाइडेड बाई एच, ये आपका जी डैश, अरे फिर गड़बड़ हो रहा है, जी डैश जेड जेड प्लस एच माइनस जी जेड डिवाइडेड बाई एच, ये आपका जी डैश जेड हुआ. एंड व्हाट इज जी डैश जीरो? ये तो किसी वेरिएबल पॉइंट जेड पे उसमें क्या डेरिवेटिव होगी. नाउ एट जीरो व्हाट इज द डेरिवेटिव? लिमिट एच टेंड्स टू 0, जस्ट पुट जेड इक्वल टू 0, तो जी एच माइनस जी जीरो डिवाइडेड बाई एच, ये आपका हो गया जी डैश जीरो. नाउ जी एच by the definition of our g, what is gh? This is nothing but f a plus uh b plus vh. This is gh minus g zero, put z equal 0, f a b divided by h. और ये क्या है? This is nothing but the directional derivative in the direction of u of f at a b. तो आपका जी डैश जीरो जो हो रही है ये हो रही है डेल यू एफ एट ए बी. अब ये जी डैश जीरो क्या होगा? जी डैश, हाउ टू कंप्यूट दिस जी डैश जीरो? यूजिंग द कंपोजिट चेन रूल वी कैन कंप्यूट जी डैश जीरो. इफ वी राइट दिस जी जेड एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, where x equal to a plus uz and y equal to b plus vz. ये क्या है? देखिए gz क्या है? x plus a uz को x मान लिया और b plus vz को मैंने y मान लिया, तो gz is equal to fxy हो गया, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x and y. ओके, देन बाय द चेन रूल g डैश z क्या हो जाएगी? g डैश z इक्वल टू del f by del x dx by dz, del f by del y dy by dz. ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए. तो del f by del x by del f by del x dx by dz, del f by del y dy by dz. अब वैल्यू रख दीजिए. तो dx by dz जब मैं करूंगा तो क्या मिलेगा? u मिलेगा. dy by dz करूंगा क्या मिलेगा? v मिलेगा. तो दिस इज del f by del x u plus del f by del y v. तो g डैश z की वैल्यू आपको ये मिल गया. तो अगर मैं z इक्वल 0 कर देता हूं, तो अगर मैं z इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? del f by del x, del f by del x, ये जब ये देखिए x और y को
अगर मैं z 0 कर दिया तो x क्या हो जाएगी a और y क्या हो जाएगी b। तो ये जो del f by del x at xy, एक्चुअल में ये क्या है at xy, del f by del x at xy, del f by del y at xy, ठीक है। अगर मैं z को 0 कर दूंगा तो x क्या हो जाएगी a, y क्या हो जाएगी b, तो del f by del x at ab into u plus del f by del y at ab into b। तो ये आपका g dash 0, बट g dash 0 क्या है, a g dash 0 डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, और you can say that directional derivative in the direction of u of f at ab, this is given by del f by del x at ab u del f by del y at ab b, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर कैलकुलस याद होगा या फिर हम पढ़ेंगे आगे वेक्टर कैलकुलस में, एंड देयर you see that it is nothing but this is Dot product. gradient of f dot unit vector u। याद होगा ग्रेडियंट ऑफ, पता है ना आपको ग्रेडियंट ऑफ क्या होती है, यस सर। del f by del x I plus del f by del y j, ये ग्रेडियंट होती है। और यूनिट वेक्टर आपका Yes, sir. u I प्लस v j हो जाएगा, दोनों का डॉट निकालो तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो del f ग्रेडियंट f डॉट u, ये ग्रेडियंट, तो ये एक्चुअल में फार्मूला हो गया। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, रिमेंबर दैट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसी से हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। अगर डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इतना होगा, ये नहीं कि हम जस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ये मान रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय दिस। इसी को अगर 3 वेरिएबल हो जाए तो जनरलाइज हो जाए, del f by del x at a b c u, del f by del y at a b c b, del f by del y z at a b c w हो जाए, अगर u v w यूनिट वेक्टर है तो 3D में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। Find the directional derivative in the direction of theta is equal to 2 pi by 3 at the point 2 0 of the function fxy is equal to x e power xy plus y। ये आपको प्रॉब्लम है। पहले तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं कि उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। आपको यू भी कंपोनेंट तो चाहिए ना यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर in the direction of theta equal to 2 pi by 3 is क्या हो जाएगी, cos 2 pi by 3 sin 2 pi by 3, ये आपको यूनिट वेक्टर हो जाएगी। तो cos 2 pi by 3 -1 by 2 sin 2 pi by 3 √3 by 2, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर दैट मींस क्या हुआ, ये आपका u है और ये आपका v है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हमको del f by del x del f by del y फाइंड करना है। नाउ del f by del x, del f by del x मींस e power xy plus xy e power xy, ये आपका del f by del x, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमको del f by del x इस पॉइंट पे चाहिए, कौन से पॉइंट पे, एट 2 0। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रख दीजिए, e स्क्वायर ये 0 हो गया, x इक्वल टू 2 e पावर 0 मीन्स 1 हो गया, सिंपल है ना, तो 1 हो गया। एंड del f by del y, del f by del y just differentiate with respect to y to the given function, ये Excuse me, sir. तो Sir. yes
सर ये 1+3 होना चाहिए ना, 1+2 कौन सा? टोटल 3 होना चाहिए क्या? सर डेल एफ बाई डेल एक्स 3 होना चाहिए ना, देख लेते हैं। 0 सॉरी 1 होगा 1 हो वाई ठीक है, value 0. सही है। यस सर सही है Yes, ना? sir. ओके। तो डेल एफ बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स को कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स वाई प्लस 1। सो डेल एफ बाई डेल वाई एट 2 0, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पर 2 2 4 प्लस 1 5 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमने डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई एट 2 0 फाइंड कर लिया। सो thus directional derivative in the direction of u of f at 2 0 is given by fx 2 0 minus 1 by 2 fy 2 0 root 3 by 2। वैल्यू रख दीजिए, then you will find minus 1 by 2 plus root 3 by 2 5, or you can say that 5 under root 3 minus 1 by 2। ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो ये तो थीटा दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ हो, मान लेते यही क्वेश्चन होता कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू i प्लस 3j, अगर मान लेते क्वेश्चन ये होता, अगर यूनिट वेक्टर आपको ये दिया होता है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी, आपको जो यूनिट वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद फिर 2 बाई रूट 13 u हो जाएगा और 3 बाई रूट 13 v हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। थीटा दिया तो cos थीटा आई sin थीटा j कर देंगे। अगर जनरल ai प्लस bj दिया हुआ है तो फिर उसको उसके मॉड से डिवाइड करके वी विल फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, देन अप्लाई द फार्मूला एंड रिमेंबर दैट दिस इज एप्लीकेबल इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कभी कभी अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन एवरी डायरेक्शन अगर एग्जिस्ट हो तो जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे एग्जांपल के देख लीजिए, जस्ट टेक वन एग्जांपल। Directional derivative in every direction exists, but the function is not differentiable. The f(x,y) is equal to x plus y if either x0 और y0, दोनों में से कोई भी जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो जाए, then its value is defined by x plus y, otherwise its value is 1। अब देखिए इसका एवरी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। 0 0 पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, fx कितना होगा, fx एट 0 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f h0 माइनस f0 0 डिवाइडेड बाय h। f h0 इज h, h by h 1 1 आ गया। f y0 0 लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 k माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय k, अगेन इट्स वैल्यू इज 1, ये भी 1 हो गया। अब देखते हैं क्या बाकी किसी दूसरे डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f 0 0 इन अदर डायरेक्शन नॉट एग्जिस्ट। कैसे नॉट एग्जिस्ट है, देखिए du, so let
दिस वेक्टर इज ui प्लस vj, कोई भी जनरल डायरेक्शन है ui प्लस vj। अब इस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर भी मान लेते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f in the direction of u at 0 0 is given by limit h tends to 0 f 0 plus hu 0 plus hb, तो hu hb minus f 0 0 divided by h, ठीक है। क्या मिलेगा? hu hb as per our definition, अगर कोई कंपोनेंट जीरो नहीं है, remember that neither u is equal to 0 nor v equal to 0, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगी, 1 by h not exist। So a problem में the directional derivative in other direction not exist, but the directional derivative in the direction of x and y axis exist। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए, जिसमें एवरी डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ये कंडीशन है। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at 0 0 in any direction u। ठीक, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, रिमेंबर दिस। लेट दिस यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू ub, मान लेते हैं ये ub है, ठीक। देन f 0 plus hu 0 plus hb minus f 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इज इक्वल टू f hu hb माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये मिलेगा। अब देखिए hu hb, और हम यहां ये मान के चलते हैं कि neither u is 0 nor v is 0, x और y डायरेक्शन को छोड़कर कोई दूसरे डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें neither u 0 है nor v equal 0 है, तो hu hv क्या हो जाएगा? इफ यू डिफाइन लाइक दिस, hq u v स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस h पावर 4 v पावर 4, ठीक है। अब देखिए, आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो, माइनस f 0 0 0 हो गया डिवाइडेड बाय h, एंड सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस hu 0 प्लस hb माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए 0 जीरो कहां से होगा? कुछ और होगा, देखो एच क्यू से ये एच क्यू कैंसिल हो जाएगी, यू स्क्वायर बचेगा, ऊपर में यू भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई यू बच जाएगा। दैट मींस v स्क्वायर बाई यू। तो यहाँ पर u को हमने नॉन जीरो मान के चला है, ठीक है। देखिए u नॉन जीरो है, v नॉन जीरो, एटलीस्ट u तो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x डायरेक्शन नहीं है। सो एक्सेप्ट x एंड y डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय v स्क्वायर u इन एनी डायरेक्शन u, ठीक है। नाउ del f by del x at 0 0,
इन द डायरेक्शन ऑफ u, तो del f by del x क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ u है, ये माने x एक्सिस है। ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, u 1 हो जाती है, यहाँ पे u 1 और v 0 होती है, तो हमको del f by del x मिलता है। तो f h 0, ये तो 0 हो गया by the definition of f, and similarly del f by del y at 0 0 is limit h tends to 0, f 0 0 plus h minus f 0 0 divided by h, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो both the directional derivative in the direction of x and y axis exist, and also the directional derivative in any particular given direction is also exist, in general direction is also exist. So in every direction directional derivative exist, but the function is not differentiable. ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तो देख लीजिए, डेल्टा एफ माइनस डी एफ बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वैल्यू फाइंड करके देख लो। तो डेल्टा एफ तो एज यूजुअल होगी एच के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के पावर 4, डी एफ 0 हो जाएगा क्योंकि सभी 0 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब लिमिट निकाल के देख लीजिए, देखिए ये भी 3 डिग्री का है, ये भी सब 3 डिग्री के हैं, ठीक है। तो अगर मैं k इक्वल टू mh रख देता हूं तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, k इक्वल टू mh, h क्यू m स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर h बाहर निकला h स्क्वायर 1 प्लस m पावर 4 h पावर 2, एंड देन फ्रॉम हियर h और आएगा, h क्यू बाहर आ गई, अब बचा किया 1 प्लस m स्क्वायर पावर 1/2, तो ये h क्यू कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगी, बचा क्या m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर पावर 1/2, ये मिला, which is not equal to 0, and so f is not differentiable. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देखा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एवरी डायरेक्शन एग्जिस्ट हो तो भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल होना और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होना दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी सर नेक्स्ट यस सर अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी जनरल डायरेक्शन के लिए निकाल लें, उसके बाद सर x और y के अलॉन्ग अलग अलग उसी फॉर्मूले से सर निकाल सकते हैं। हाँ, हम वही तो किए हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने लिया है ना, जब y और x के डायरेक्शन में फाइंड किए, देखिए होती क्या है देख लो, लेकिन वैल्यू पुट करके नहीं, आपको डेफिनेशन से ही निकालना पड़ेगा, रिमेंबर दिस, ये नहीं कि आपने निकाल दे के वैल्यू रख दोगे। यहाँ पर देखिए जब आप x डायरेक्शन में जाते हैं, x एक्सिस में, x एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, u इक्वल टू 1 हो जाती है और v इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो u 1 और v 0 करो तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो y एक्सिस है, y एक्सिस में u 0 हो जाती है और v 1 हो जाती है। अब देखियो u 0 v 1 करो तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वैल्यू रखोगे तो आपकी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी, मतलब वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हो, आपको बाय डेफिनेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, ये सर डाउट था कि ये इन्फिनिटी कैसे आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे u नॉट इक्वल 0 मान के चले ना भाई, यस लेकिन बाय एक्सिस में u 0 होगा, इसे गड़बड़ हो जाएगी। सर हाँ
सर वो कह रहे थे कि आपको सर मैसेज किए थे सर, क्विज मेरा रिटर्न वापस में नहीं आया है, मतलब अच्छा, क्या नंबर नाम नहीं है शो हो तुम्हारा? रहा है। अभिषेक कुमार सिंह। कितने लोगों का है जिनको मार्क्स पता नहीं चला है? सर हम किए थे आपको सर, तो आप बोले कि मंडे को बता देंगे। हाँ जी, बाकी लोग सब लिफ्ट कर जाओ, केवल वही लोग रुके रहो जिनको मार्क्स नहीं मिला। मैं भी बता देता हूँ आप लोगों थैंक यू सर। को। ओके, बाकी सब लिफ्ट कर जाओ, केवल वही सर रुके रहो जिनको मार्क्स। अटेंडेंस में ले लिया, डाउनलोड कर लिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी, इसे अपलोड कर दीजिएगा। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जो क्विज में क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल हुआ है वो क्यों हुआ है सर? नहीं, 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सर 9 कैंसिल हो गया है। नहीं, हाँ, जो 9, 10, रुको बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एक सेकंड रुको। सर एक्चुअली 9 वाला सही था। नहीं, 9 वाला सही नहीं था ना, तो बता रहा हूँ, 9 वाला सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट था, उसमें x ग्रेटर देन 0 होना था, नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इनकम्प्लीट था, उसमें इंटरवल मिसिंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटरवल नहीं था, वो मिसिंग था, इसी कारण से 9 को हटा दिया गया। बट सर क्वेश्चन नंबर 10 में भी टाइपो एरर था, आंसर -1/2 टू +1/2 आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी रॉन्ग आंसर था, तो इस तरह चारों क्वेश्चन को हटा दिया गया। सर क्वेश्चन नंबर 9 पे उसमें पहली क्वेश्चन में बोल देते कि बाउंडेड लिमिट है, बाउंडेड इंटरवल होगा, तो वो x 1 से -1 हो तो रहा था सर। क्वेश्चन में सर पहले बोला था बाउंडेड लिमिट, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर जब, तो उसमें सर एक बाउंडेड लिमिट आ रही थी और एक अनबाउंडेड लिमिट आ रही थी, तो बाउंडेड लिमिट सॉल्व करके कर नहीं, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जो x इज सीरीज इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, आप क्या लिखोगे? फॉर एवरी x के लिए कन्वर्जेंट नहीं है ना। नहीं सर, नहीं, अगर इसमें हम लोग वही लगाते हैं सिग्मा मॉड ऑफ an, तो सर उसको जब हम लोग चेक करते हैं क्या कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो होता नहीं सर थ्योरम, बेटा उसके लिए एवरी x के लिए कन्वर्जेंट नहीं है, अलग, ठीक है। x = 1 करूंगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। बाउंडेड x = 1 बाउंडेड रीजन में नहीं आएगी,